dried in the sun. So can you see it has gone fade? This is the same fabric what we are using. See, these are two different, the same technique I've used, but can you see the color difference? This was dried in shade and this was dried in bright sun. So I just wanted to see how fade it goes. It goes very fade. Okay. So apart from turmeric and altering it with the soda bicarb, or you can say khane ka soda, you can also use tea, that is जो हमारी घर की चाय की पत्ती होती है, आपको उसे बॉईल करना है, मेक अ स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉशन और उसमें आपको डाई करना है. And if you want to dye it with coffee, then with coffee you need to use a coffee concoction and not the normal filter coffee. So like the Nescafe coffee and all that you get, you even if you dye, you'll get a very light color. So in order to get a very dark color, you need to get those concoction coffee beans, get a concoction out of it, and then dye. So it's a long process. Okay. The next thing what you can dye once the market gets open, you can dye it with manjistha. What is manjistha? It's a powder which is normally used in face packs. Okay, you can dye with that also. With that also you'll get a nice reddish color. Nice reddish color. And the third thing what you can dye is hibiscus. I did not get hibiscus flower near my house. Otherwise, hibiscus is one thing what you can use to dye. What you have to do is you have to take 2 to 3 hibiscus flowers, okay, and boil it in water. Once it starts leaving its color, you can add a bit of soda bicarb, or you can say khane ka soda, and it turns green. You can use that also to dye your fabric. It gives you a nice green color. Okay. Now the next part comes is the fabric. What fabric can you use? Okay, you can use cotton fabric. The one I've got is called Manzar Pat. Okay. The next fabric you can use is poplin, cambric, and if you can use rayon cotton also. But in rayon cotton also you get two variations. One is dyeable and one is non-dyeable. If you're buying it from a cloth store, he'll tell you कि ये dyeable है या नहीं है. They know it. Okay. The difference between dyeable and non-dyeable is the dyeable one will have a nice cotton feel and less shine. The non-dyeable will be a little shiny fabric. Like if you hold it closely, you will be able to see a bit of shine in that. Means that is a bit of polyester mix. Hence you cannot dye it at home. Even polyester is dyeable, but then the dyeing process is very much tedious. You cannot do that at home. So these are the fabrics and the colors what you can use. Now coming to the patterns, we will start with the patterns. Now everyone has got the fabrics with them. Pattern is that I'll show you 4 patterns, but we'll cover around more than 4. Okay. So if you have very big fabric, what you can do is you can just cut it in some pieces. So this is a very small piece, because if you're using it for practice, you can obviously cut this in small pieces. But if you're going to make something out of it, then I would suggest don't cut. Like if you've cut for a size of a cushion cover, so then do not cut this in small pieces. फिर आपके लिए कुछ काम का नहीं है. ठीक है. This is another pattern. First pattern is this, what I've done. Now you can see something red that was there in my thread, so it's red like this. This is a very old pattern. You must have seen this pattern in your bed sheets also. अगर आप tie and dye की bed sheet लेकर आते हो, तो आपको ये ऐसा pattern बहुत जगह दिखेगा. The simple pattern is, now for this pattern you need fabric and thread. So I've used such kind of thread. Okay. One more thing, if you're doing this on a bigger fabric, like you're doing on a dupatta or maybe a tablecloth, then don't use this thread. You can go for sutli. Sutli will be somewhat like this. Okay.
बिकॉज अगर आप पतले थ्रेड से बांधोगे तो कब तक बांधोगे, मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. It's better to use a sutli because in sutli helps you to cover more area in a lesser time and lesser effort. Okay, so for smaller fabrics use this, and for bigger fabrics use the sutli thread. Where you will get this? You will get this in any hardware store as of now. उनके पास भी होती है. They might give you थोड़ा सा very ऐसे ही. But if you're going to do it regularly, then buy a little more. सेकेंडली दिस इज रीयूजेबल. एक बार आपने इसे डाई कर लिया अच्छे से, अगर आपने इसे यूज किया तो यू कैन जस्ट रीओपन, पानी से धो दो और सुखा दो और फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं. सो यू कैन रीयूज दिस. अदरवाइज ये थ्रेड तो आपको कट ही करनी पड़ती है. फर्स्ट पैटर्न इज यू विल नाउ जस्ट ले योर फैब्रिक ऑन अ फ्लैट सरफेस और बीच में से आप ऐसे उठाओगे. Now if you don't know the middle part, what you can do is you can just fold your fabric and fold it like this, so you get the middle part. Okay, and then just open and fold it from between like this. Okay, like this, and then we will start tying this. Now when you're tying, it should be very tight. अगर आपका बहुत लूज होगा ना, so what will happen is that कि ये आपका रेजिस्ट नहीं होगा टाई. एवरीथिंग विल बी टाइड टुगेदर, तो पैटर्न ही नहीं समझ में आएगी. नाउ टू टाई व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं सुतली से बताती हूँ बिकॉज ये थ्रेड बहुत पतली और दिख नहीं रही है. सो यू विल नॉट नो द टाइंग टेक्निक देन, दिखेगा नहीं. तो तो why there is a technique to tie also, क्योंकि अगर आपने इसको एकदम ठीक से नहीं बांधा ना, फिर पानी में डालोगे खुल गया, कोई फायदा नहीं इतने एफर्ट्स लगा के भी. So what I'm doing, I'm laying this along with the fabric. इतना बड़ा. Okay, and I'm leaving a gap of around 1/2 inch on the top, and then I'm just tying this across like this. And just pull it. आपने 3-4 बार घुमाया और फिर इसको आप खींचो, तो इससे क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा. Now coming to the knot part. Knot part मैंने क्या किया, I've just made one loop like this. See, ये loop बना लिया मैंने. This is my thread and here I've made one loop. Okay, अब आपको लूप के अंदर से फैब्रिक को लेके जाना और यहाँ से पुल करना. So that way you will secure your fabric and then the knot also will be secured. अब या तो since if it is this kind of thread, तो और एक ऐसी knot ले लो और कट कर दो फैब्रिक को, थ्रेड को. एंड देन द नेक्स्ट इज, इसके बाद आप कहाँ बांधोगे. अगर आप इसके बहुत क्लोजली यहाँ पे बांध देते हो ना एकदम नीचे, तो क्या होगा कि ये बहुत पतली सी लाइन होगी जो डाई होगी और वो भी ठीक से नहीं होगी. सो इट्स बेटर टू लीव ऑलमोस्ट 1/2 inch to 1 inch का गैप एंड टाई द सेकेंड स्लॉट ऑफ नॉट्स. अभी क्योंकि ये सूतली है तो मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ. Again we'll go along with the fabric like this, and then we'll start. We need to hold it एकदम ठीक से. और ये भी अगर आप बांध रहे हो ना, so if your fabric is very small, then the amount of fabric you will tie should be around 1 centimeter to 1.5 centimeter. बहुत पतला सा मत बांधना, क्योंकि बहुत पतला सा बांधोगे बहुत कम एरिया रेजिस्ट होगा. और इन केस आपका नॉट बहुत ही ढीला है, you will face an issue of the fabric will not be resisted with the thread.
तो बांधा भी लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा. सो इट्स बेटर टू हैव अ लिटिल बिगर एरिया टाइड. जैसे अभी देखो मेरे ये इतना मैंने टाइड किया, ठीक है, फिर मैंने उससे थोड़ा और ज्यादा गैप छोड़ दिया. नाउ व्हाई आई हैव डन दिस, ठीक है, क्योंकि जब अगर समझो मैंने इसे डाई किया और मुझे खोलना है, ठीक है, तो मेरा सूतली जॉइंट विल नॉट गेट वेस्टेड. लाइक आई कैन रीयूज दिस and again we'll tie a knot like this. और ये नीचे का बचता है तो यहाँ पर भी आपको बांधना है. ये नीचे का फिर इतना बचा आप उसको छोड़ सकते हो. ये दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न. Next pattern. Okay, now the next pattern is very easy. This is a rectangle fabric. Okay, if I'm taking by the length side like this, so इसमें क्या होगा ना कि मेरा जो फैब्रिक का फोल्ड किया हुआ पार्ट होगा वो बहुत थिक हो जाएगा, and then that will be very difficult for me to tie. So what I'm doing is I'm folding this along the length. अगर आपका square है so just ignore this rule, but if your fabric is rectangle in shape, then then follow according to the length. Okay, so I'm taking your pleats. Now for this pattern, in this we will do 3 patterns. Okay, with these 3 patterns, what all we will do. Currently it's a lockdown, so you might not have some few items, but I can suggest you alternatives अगर आप बाद में डाई कर रहे हो. So these are MDF cutouts. Okay, and now MDF cutout, if you want to go and find, you will not be able to find this now. तो घर में आप इससे कैसे बना सकते हो? Take a very thick cardboard. Now if you see, this is also very thick. Take a very thick cardboard and just wrap it with plastic, or if you have a cling wrap, तब cling wrap से wrap कर. Why? क्योंकि अगर आप कार्डबोर्ड लेते हो और उसको रैप नहीं करो, ठीक है, और आप उसको पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, कलर सीप इन थ्रू हो जाएगा और आपका रेजिस्ट नहीं होगा, मतलब फैब्रिक रेजिस्ट नहीं. सो टू अवॉइड दैट कॉन्टैक्ट विद द डाई एंड देन ट्रांसफरिंग डाई टू द फैब्रिक, इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे से क्लिंग रैप या प्लास्टिक से कवर कर. नाउ विद MDF आई डोंट नीड टू डू दैट. MDF कलर ट्रांसफर नहीं करता है फैब्रिक में. और मैं इसे यूज कैसे करती हूँ, ये समझो अगर ये गीला हो जाता है फैब्रिक पानी में या डाई वाटर में, तो मैं इसे क्या करती हूँ, अच्छे से झटक लेती हूँ और उसके बाद इसे धूप में सुखा देती हूँ. आई जस्ट ड्राई दिस फॉर अराउंड 2 days इन सन एंड देन इट इज गुड टू यूज. अगर आप इसे ड्राई नहीं करोगे ना तो इसमें क्या होगा, ये पाउडर होने लग जाएगा, मतलब इट विल कैच अ लॉट ऑफ फंगस, फिर इसमें कीड़े हो जाते हैं. So when you're doing it, if you don't have this, just cut. This is 2 by 2 inches and this is around this was a poster like this. So this was what 3 inches by 3 inches और इसको बाद में बीच में से कट कर लिया, तो ऐसे मेरे पास 2 triangles आ गए. So if you have anything like that at home, cardboard या ऐसा कुछ, तो आप उसे प्लास्टिक में या क्लिंग रैप में कवर करके यूज कर सकते हो, ठीक है. Now if you don't have this, okay, you can use ice cream sticks also. They're very versatile और अभी तो हमेशा घर में होता ही है ice cream sticks. Even ice cream sticks can be used. अगर आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे लग रहा है I don't have cardboard में हो ही नहीं सकता घर पे, तो आप क्या करो, आइसक्रीम स्टिक्स ले लो, ठीक है. आइसक्रीम स्टिक से भी आप बहुत सारे पैटर्न्स कर सकते हो. जस्ट रिमेम्बर, फॉर एनी पैटर्न यू आर डूइंग, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ स्टिक लगानी है फैब्रिक के.
एक साइड लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ लगा के फिर सिक्योर करना है. That is one thumb rule when you're using ice cream stick. And the same rule goes for the MDF or cardboard pieces also. Okay. Now for this pattern, what you will need? You will need this fabric and फिर इसको आप just make small pleats. Okay. Now when I'm doing this, तो इसमें ना मैं एक रूल को फॉलो करती हूँ कि समझो अगर मेरे पास ये टुकड़ा है और मुझे ये यूज करना है, लाइक इससे कुछ पैटर्न बनानी है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं ना मेजरमेंट ले लेती हूँ. मतलब मैंने समझो ये पीस रखा, आई शुड बी एबल टू लीव अराउंड से 1.5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, क्योंकि अगर आप सारा फैब्रिक इसके नीचे दबा दोगे तो सारा ही रेजिस्ट हो जाएगा और कोई पैटर्न नहीं है. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक मेजरमेंट कि आपने इसे आगे और पीछे से रखा. इन केस अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी, जस्ट मेक प्लीट्स लाइक दिस. ओके, जस्ट मेक प्लीट्स. ये हमने प्लीट्स कर ली, एंड देन you will hold your fabric straight like this and you will again go pleats like this. So this is also called as accordion fold. Okay. I have such kind of clips. आपके पास अगर पेपर क्लिप ये है क्लॉथ क्लिप है तो कोई बात नहीं, आप वो भी यूज कर सकते हो. Just pin it. तो जहाँ आपके पिन है ना वहां पर भी एक पैटर्न आएगा. फिर भी क्या होगा पता है, ये आगे और पीछे का डाई हो जाएगा बट अंदर का फिर भी रेजिस्ट हो जाएगा. इफ द फैब्रिक इज वेरी थिक, मतलब अगर आपका फैब्रिक बहुत बड़ा है ना, देन यू विल हैव दिस पैटर्न. बट अगर आपका फैब्रिक बहुत छोटा है जैसे मेरा है, तो फिर अंदर का भी रेजिस्ट नहीं है, क्योंकि इतना फैब्रिक ही नहीं है कि वो पकड़ के रखे. तो इन दैट केस यू हैव टू यूज. इफ इन केस अगर आपके पास ये नहीं है अभी, तो आप क्या कर सकते हो, विद आइसक्रीम लाइक दिस. आगे और पीछे लगा ली, फिर यहाँ पर आपको इसे चारों तरफ लगाना है. और इसको सिक्योर कैसे करोगे आप, क्लिप से या रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हो. I'm securing this with a clip. मतलब आपको यहाँ भी लगानी है. The same thing you have to repeat here also. तो आपका स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा. Securing this square cover. This is one pattern. इसीलिए जो बांधनी का जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा लगता है. Can you see white spots बांधनी के जैसे? Like this. So how will you get the bandhani pattern? This is also called as therefore pattern. School में होता था ना therefore. Okay. So for the therefore pattern, what you will do is again we will take pleats. हमने फिर से pleats ले ली. Just off the boundary. So these are my pleats. They are ready. जैसे हम साड़ी के लिए कैसे लेते हैं प्लीट्स, ऐसे लेंगे नहीं.
So now you will hold one corner of either side, कोई भी साइड का एक कॉर्नर ले लो. तो मुझे ये वाला लेना है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, I'll take small pleats like this, gather this, and then tie a knot over there with the thread and tie a knot. knot बांधने का तरीका है सेम है कि आपको पहले ऐसे लेना है थ्रेड नीचे और फिर उसके ऊपर बांधना. Has to be tight और थोड़ा बड़ा एरिया का होता है. रेडी टूट गया था तो मैंने अभी फिर से ज्वाइन किया है. मैंने अच्छा खासा इसे बांध लिया है. मैंने इसे बांधा है. Give me 1 minute. See, this is almost 1 centimeter जितना बांधा है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्क्रीन में बहुत बड़ा दिखता है and actually when you're doing it comes out to be very small. So see, मैं इसे स्केल रख के बता रही हूँ कि मैंने 1 सेंटीमीटर तक बांधा है. बट इफ इन केस यू डोंट वांट टू मेजर एवरी टाइम, जस्ट डू अ स्मॉल एस्टिमेशन विथ योर फिंगर्स इटसेल्फ. मतलब अगर मैं देखूँ तो मैं इतना, ठीक है. So again we'll do 2 knots for this. Knot is very important क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा फैब्रिक करते हो ना तो then that becomes an issue. And then just break this layer. अब आपने यहाँ पर एक कर लिया है, ठीक है. Now it is giving you indication diagonally opposite. See, this is diagonally opposite over here. और यहाँ पर भी आप जब आते हो तो आपको ये याद रखना है कि आप जितनी भी आपकी प्लीट्स हैं, आप सारी प्लीट्स एक साथ पकड़ के चल रहे हो, ठीक है. क्योंकि वो तो चलो कॉर्नर था तो वहां हमारे पास ऑलरेडी एक एज था. अगर आपके पास एज नहीं, यहाँ पर अभी हमारे पास एज नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट मेक अ यू ऑफ दिस फैब्रिक. छोटी फोल्ड आ गई यहाँ पे. Like you will pinch the fabric from that side, or you can say you made a U. Okay. Start. So this became now diagonally opposite. अब इसके diagonally opposite आपको बांधना. Same thing, gather all the fabric and then make a U and pinch, or you can say you can just pinch your fabric from the edge. And then just make a knot.
ओके जब आप पूरा ऐसे कर सकते हो, सो कैन यू सी दिस इज अ देयरफॉर साइन, मैंने कहा था मैथ्स में यूज करते थे देयरफॉर। सो अगेन दिस विल गिव यू इंडिकेशन कि आपको डायगोनली ऑपोजिट बांधना। ऐसे आप पूरा फैब्रिक बांध सकते हो, और या तो फिर ऐसे कर सकते हो, you can do 4 knots and rest of the fabric you can make some pattern out of it, जैसे अभी आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, so you can put an ice cream stick over here like this. यहाँ पर आप एक क्लिप लगा सकते हो. If you don't have a clip, just secure both the edges with a thread or rubber band. सबका अगर ये हो गया, so then unmute yourself and let me know. फिर मैं next pattern बताऊंगी. So for the triangle one, dividing fabric into half. So the triangle वाले में मैं क्या करूँगी पहले, to make pleat बनाने से पहले मैं ये triangle का measurement ले लूँ. If you see, I just take the measurement of this triangle. तो मैं पहले ऐसे रख के मेजरमेंट ले लूँगी. अब जब कभी भी करो तो आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी क्लैम्प, दिस आर कॉल्ड एज क्लैम्प्स, अगर आप कोई भी क्लैम्प यूज कर रहे हो तो उसका मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है. ओके, सो आई एम जस्ट लीविंग 1.5 सेंटीमीटर्स ओवर हियर एंड हियर आल्सो, और फिर मैं उसके हिसाब से इसकी प्लीट्स लूँ. ठीक है, सो दिस इज गुड टू गो. सो आई विल जस्ट स्टार्ट टेकिंग प्लीट्स जैसे हमने पहले ली थी. Now this is also called as samosa patti fold. Okay, मैंने इसे क्या किया, इसका एज ले लिया और एज को मैंने ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड किया. एंड देन मैंने इसको पीछे फोल्ड कर दिया. At the back this will look like this. Okay, फिर से मैं इसे diagonally जो है ऐसे फोल्ड करूंगी. So when I come in the front it looks like this, and then again this is also again a samosa patti fold. आपके ट्रायंगल्स कुछ ऐसे लगेंगे. एवरीवन क्लियर? आई थिंक इसमें डाउट होगा क्योंकि फोल्डिंग का कंफ्यूजन आ जाता है इसमें. This is a triangular fold. अब इसमें जब आप क्लैंप लगाते हो तो एक आपको आगे लगाना है और एक पीछे. ये वाला जो पैटर्न है ना, आप इसके साथ बहुत प्ले अराउंड कर सकते हो. एक तो आप ऐसे लगा लो, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना, जस्ट डू उल्टा. दिस विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट पैटर्न. एंड देन सिक्योर दिस विद अ रबर बैंड और अ क्लिप एंड विल डू पैटर्न जो बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को अच्छा लगता है. उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फैब्रिक, अ थ्रेड और रबर बैंड. एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि थ्रेड ही होना है या रबर बैंड, एनीथिंग. ओके,
lay your fabric एकदम flat और lay your fabric very flat on the surface जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो and then just hold the middle part जैसे हमने first वाले technique में किया था and start twisting it. When you're twisting, make sure that you the fabric is in the contact with the surface. ऐसे ऊपर से नहीं करना है, हवा में करोगे तो वो घूमेगा ही नहीं. आपको सरफेस में दबा के इसको गोल घुमाना है. Pinch the fabric and rotate. जब आप इसे गोल घुमाओगे ना तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद देखो फैब्रिक ही गोल गोल घूमने लगे. So in that case what you will do, you will hold this like this and then you will start twisting it. और एक पॉइंट आएगा जब आपका पूरा फैब्रिक गोल घूमेगा, then stop. आपको फैब्रिक गोल घुमाना है. आप हाथ वही रखोगे और फैब्रिक को ट्विस्ट करो. So you will have something like this. This is my very big fabric. मैंने इसको बीच में से उठाया है इसलिए I'm just taking middle part और मैं इसे ऐसे ऐसे गोल घूमती हूँ क्योंकि ये देखो बड़ा है ना तो काफी टाइम तक गोल घूमता रहेगा. एटलीस्ट 3 राउंड्स वो गोल घूमेगा. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इफ यू सी फैब्रिक ही गोल घूम रहा है तो क्या करना है आपको, आपको ये जो पॉइंट है इसे यहीं रोकना है एंड देन आपको फैब्रिक गोल. This is what you will get. But अगर आप इसे छोड़ दोगे तो पूरा खुल जाएगा. So make sure you hold the edges और ये अंदर से पकड़ के इसको टाइट करो. Now getting shown this pattern. Just give me 1 minute. Raksha, you have to use the haldi powder जो अपना जो किचन में यूज करते हैं ना वो. You were asking me about soap colors. Soap colors I don't think so क्योंकि वो फूड कलर्स ही हो जाते हैं. ये रक्षा या म्यूट अनम्यूट करो ना. I was asking about this mica. हाँ Mica. नहीं आप किचन वाली हल्दी यूज कर लो. Okay. That okay. I have. Apart from that, I was asking if something like. अच्छा उसके अलावा सोप कलर्स आप यूज कर सकते हो लिक्विड वाले. लिक्विड वाला. That's what I was asking. हाँ वो आप यूज कर सकते हो. Okay. गोल पैटर्न. अब आप फैब्रिक को ऐसे पकड़ोगे, ये मिडिल पार्ट है, इसे फिर से गोल बनाना अच्छे से. ये हमने कर लिया. उसके बाद एक रबर बैंड लेना है या थ्रेड लेना है एंड जहाँ पर ये दो एजेस ओपन होते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो वहाँ आपको एक रबर बैंड पहले लगा
so that ये पूरा सिक्योर हो जाए ना। रबर बैंड लगाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बोथ द साइड्स इट विल जस्ट क्लोज, तो आपको ये ओपन करना है both the sides। क्यों ऐसे? क्योंकि क्या होगा अगर ये ऐसे क्लोज रहा ना तो आपके लेयर्स में कलर नहीं जाएगा, एंड देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। एंड देन वन मोर ऑन द अदर एंड। अगेन ओपन। अगर आपका फिर से ऐसे क्लोज हो गया जैसे मेरा हुआ था, आपको फिर से इसे खोलना है। That's it। सबका हो गया यहाँ तक? Now if you see how did I get this lining वाला पैटर्न, alternate वाला, तो मैंने क्या किया था, अगेन मैंने accordion fold किया, and then I started folding it big like a rectangle। हमने पहले स्क्वायर किया था, मैंने इसको ऐसे रेक्टेंगल किया ऐसे, और फिर यहाँ बीच में एक रबर बैंड बांधा। So why are we doing accordion fold, और हम क्यों ऐसे प्लीट्स लेते हैं? The reason being taking pleats is, क्या होता है ना, आपका पैटर्न रिपीट होता है। अगर आप प्लीट्स और ऐसे फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा कि सपोज इफ दिस इज योर फैब्रिक, ओके, और अगर आप इसे सिर्फ ऐसे घड़ी करके और फिर आप इसे डाई करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो सेक्शन बाहर जो एक्सपोज्ड है ना, उसमें बहुत अच्छा डाई आएगा, और अंदर की तरफ इट विल बी कम्प्लीटली फेड। तो वहां या तो डाई जाएगा, नहीं जाएगा तो बहुत कम जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी डू अकॉर्डियन फोल्ड। अकॉर्डियन फोल्ड करने से क्या होता है कि आपके सारे एजेस ओपन होते हैं, लाइक इन दिस फोल्ड, यहाँ पे जगह है तो यहाँ से डाई जाएगा। दैट इज व्हाई वी प्रेफर अकॉर्डियन फोल्ड, और इससे आपकी पैटर्न सेम पैटर्न रिपीट होती है। दैट अकॉर्डियन में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू डू लाइक दिस आल्सो, आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें। हाँ पर आप कुछ बता रहे थे, बताओ। मैम ये सही है क्या? हाँ ये सही है, ये सही है, एकदम परफेक्ट है। If you done with your pattern, तो जब लोग किचन में जाएंगे we will warm some water, और फिर आपको हल्दी और चाय के पानी से कैसे बना, अगर पाउडर डाइज है, टेक वाटर, उसमें आप नमक डालो। टेक, इफ यू हैव खड़ा नमक एट योर होम राइट नाउ, ऐड खड़ा नमक। इफ यू डोंट हैव खड़ा नमक, ऐड द नॉर्मल सॉल्ट, ओके। एंड देन उसके अंदर आप डाई थोड़ा थोड़ा करके डालो, बिकॉज वी डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग योर डाइज आर। क्योंकि अगर आपने जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा डाई डाल दिया ना, तो फिर क्या होगा कि वो डाई तो आपका फैब्रिक हो जाएगा, लेकिन वो फेड भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल स्पून ऑफ डाई, तो आपको वो समझेगा, जैसे वो बॉईल होगा ना तो समझेगा, ठीक है। फिर आप डाल के और थोड़ा सा ना, जैसे कपड़े का एज होता है ना, वो थोड़ा सा से डिप करके देखो,
आपको Okay. तुरंत समझ में आ जाएगा. If it is very light, then add little milk. Okay. कितना मैम? एक्सक्यूज मी मैम, अभी कितना पानी डालना है, बॉईल करना है कितना? आपका फैब्रिक कितना बड़ा है? मेरा बहुत छोटा है. हाँ तो आप 300 ml पानी लो सिर्फ. 300 ml, बाप रे कितना. 200-300. एक छोटा ग्लास होता है ना पानी पीने वाला, उतना ले लो. 2 जगह पे बॉईल करना है. हाँ 2 जगह पे, ओके. क्योंकि फिर हल्दी के पानी को हम आधा डिवाइड करेंगे. ओके 300 ml ले. हाँ चाय वाले में तो थोड़ा और कम भी ले सकते हो आप, फिर उतनी आपको चाय पत्ती डालनी पड़ेगी. मैम मिनिमम चाय का कप कितना ml होता है? 300 ml. आई एम नॉट एबल टू गेट इट. बताओ मुझे जरा वीडियो में कितना. ओके. इज दिस? एक सेकंड ना, मुझे दिख ही नहीं रहा. आपका नाम बोलो ना. हाँ माय नेम. हाँ सो मैम ये तो बहुत बड़ा है, इससे हाफ लो आप, ओके. क्योंकि आपका फैब्रिक बहुत छोटा है तो टेक हाफ. हाँ रक्षा बोलो. मैम 2. तो फॉर हल्दी के लिए आपको क्या करना, हल्दी के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है. ठंडा पानी या गर्म पानी? ठंडा पानी, सादा पानी एकदम. ओके. ये मेरी छोटी चम्मच है, एकदम छोटी वाली, वो मैं भर के हल्दी डाल रही हूँ इसमें. मैम जो गैस में जो पानी रखा था उसको बंद करें क्या? हाँ हाँ बंद कर दो. हल्दी कितना? हल्दी में एक बड़ा चम्मच लिया है हल्दी का. 1 टेबलस्पून मैम. 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम लो. अगर आपका फैब्रिक छोटा है तो आप 1 टेबलस्पून से कम. फैब्रिक इज बिग नो, तो आप 1 टेबलस्पून जितना ले लो. ठीक है. ये मैंने ठीक है, मिक्स कर दिया हल्दी को. इसको भीगने देंगे एक 5 मिनट. तब तक आप चाय का पानी बना लो. ठीक है. चाय का पानी बनाने के लिए I've taken almost 1 cup of water, क्योंकि मेरे फैब्रिक बहुत छोटे छोटे हैं. और मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितनी चाय पत्ती डाल रही हूँ. दिस इज 1 टेबलस्पून जितनी चाय. और मैम जिनके बड़े हैं वो फिर 2 लेंगे, 2 टेबलस्पून. हाँ 2 टेबलस्पून. ओके मैम. हल्दी को अलग से मिक्स करना है, डायरेक्टली पानी में बड़े बर्तन में नहीं डालना है. ये देखो मैंने हल्दी को एक छोटे कटोरी में मिक्स करके रखा. ठीक है. क्यों मिक्स किया है, क्योंकि आप जब हम इसे छान के डालेंगे, चाय की छलनी ले लो. यू कैन रीयूज दिस हल्दी. जो इसमें बचेगा ना आप वो रीयूज कर सकते हो. कितना मैम? मैं एक ऑलरेडी डाई किया हुआ फैब्रिक यूज करने वाली. कितना मैम? कुछ नहीं, आप खाली हल्दी का भी करो. एक तो हल्दी को पानी में मिक्स कर लो. हाँ. फिर मैम चाय पत्ती वाला गैस ऑन नहीं रखना है ना अभी? हाँ? चाय पत्ती वाला वो जो वाटर है, पानी है, उसको हाँ हाँ ऑन रखना है ना गैस को? हाँ हाँ वो चाय अच्छे से उबलनी चाहिए. ओके मैम. अभी हल्दी वाले के लिए मैंने क्या किया, ये पानी गर्म हो गया है. दिस हल्दी वॉज इन वाटर. ठीक है. आप इसको मेन जो जिसमें हमें डाई करना है ना उसमें छान के डालोगे.
क्यों छान के डालना है, ये दिख रहा है आपको रेसिड्यू हल्दी का? क्या होता है ना, ये जो रेसिड्यू है ना हल्दी का, ये बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जब आप इसे एक्चुअली ये करते हो ना, डाई में डाल दोगे, तो ये जाके ना आपके कपड़े के थ्रेड्स में फंस जाएंगे, और जब भी आप फैब्रिक धोओगे ना, इतना सारा हल्दी का पानी निकलेगा, और पूरा कपड़ा भी फेड हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि हमें रेसिड्यू निकाल दें, क्योंकि ये जाके ना फिर आपके फैब्रिक में जाके फंस जाता है। ये मैंने निकाल दिया। यू कैन रीयूज दिस, ये रीयूजेबल है, आप इसको दाल में या किसी में सब्जी में डाल सकते हो, तो डोंट थ्रो दिस। ठीक है, ये हमारा हल्दी का पानी रेडी हो गया। आपको ये भी ध्यान देना, लाइक इन माय लास्ट क्लास देयर वाज वन स्टूडेंट जिनका ना हल्दी का जो पानी का हल्दी जो थी वो बहुत वीक थी, तो शी हैड टू ऐड लॉट ऑफ हल्दी। इससे कहीं कहीं होती है ना, हल्दी बहुत तेज होती है, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे मैं इसमें टेस्ट कर रही हूँ, सी दिस इज वेरी ब्राइट। ये मैंने टेस्ट करके देखा। अब हम क्या करेंगे, हल्दी के पानी को 2 जगह डिवाइड कर लेंगे। ओके, I divided this in 2 parts. मैम चाय का पानी उबल ही रहा है, इज इट ओके? हाँ, मेरा भी अभी उबल ही रहा है, तो मैं भी वो चेक कर रही हूँ कि कितना कलर आया है। आई थिंक मेरे इसमें तो अच्छा इसे ब्राउनिश आ गया है कलर। यस मैम, मेरा भी ब्राउन आ गया अच्छा सा। आपको ये बंद कर देना है। मैंने हल्दी के पानी को 2 जगह डिवाइड कर दिया। आई विल टेक सोडा, दिस इज टाटा सोडा खाने वाला। हेलो मैम। हाँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जो हमारे हल्दी का जो पानी आपने इसमें डाला था, वो ज्यादा पानी है उसमें, वो ठंडा पानी था, गर्म पानी था? गर्म पानी था, बॉईल किया हुआ। ओके ओके फाइन। जो थोड़ा सा डाला था वो ठंडा था, बट जस्ट एक्चुअल डाई बना लिया ना अभी। ओके। और वो डाई में से थोड़ा सा पानी निकाला है इधर। मैं छाननी से जो आपने किया, छाननी जो आपने नीचे डाला हुआ पानी बड़े बाउल में है, वो पानी गर्म था, राइट? हाँ हाँ, या और जिसमें आपने हल्दी मिक्स किया वो पानी ठंडा था? जी हाँ, करेक्ट। ओके, थैंक यू। अब मैं इसमें इनो डाल सकते हैं ना? इनो से कई बार आता नहीं है कलर। खाना सोडा होगा आपके पास घर पे, देखो। एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने हल्दी का पानी, जो गर्म पानी फिर से ठंडे पानी में आपने डाला क्या? नहीं, मैंने उसको अलग दूसरा डिवाइड कर दिया 2 में। ओके, सेम गर्म पानी को ही आपने डिवाइड किया ना? हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। अब मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ। दिस इज योर सोडा। आपका पानी देखो ऐसे ऑरेंजिश रेड हो जाएगा। सोडा कितना डालना है मैम? मैंने इतना डाला है, इट्स ऑलमोस्ट ½ टीस्पून। चाय का जो पानी है उसे छान लो। यूजिंग द सेम स्ट्रेनर जो मैंने हल्दी के लिए यूज किया था। मैं चाय का पानी अभी छान रही हूँ फिलहाल। वेरी हॉट, ध्यान देना। मेरी जो हल्दी वाला पानी हो तो ऑरेंज नहीं दिख रहा है मैम। आपने क्या डाला? इनो डाला है? नो, सोडा डाली हूँ। दिस वन आई शो यू। कौन सा वाला? सोडा। दिस इज बेकिंग पाउडर क्या? नो, नॉट बेकिंग पाउडर, ये नॉर्मल सोडा है, कुकिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट।
तो रेड क्यों नहीं हुआ? देखो मेरा तो एकदम से रेड हो गया। हाँ मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा रेड। बताओ आपका थोड़ा सा। कोल्ड सोडा नो अभी आई थिंक अभी आया है डीमार्ट से। न्यू ही है उनका पैकेट, क्यों नहीं हो रहा? हल्दी आप हल्दी थोड़ी और डाल के देखो। हल्दी थोड़ा हल्का पानी। नहीं होगा, यू कैन सी अ कंसिडरेबल डिफरेंस दोनों में। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मेरी उतनी डिफरेंस नहीं दिख रही है। तो आप थोड़ा सा और डाल के देखो, सोडा और डाल के देखो। थोड़ा सा डाल के देखो। टुडे अगर ओपन नहीं, अगर दूसरा नहीं, वाला मेरे पास दूसरा एक पैकेट है, दूसरा डालती हूँ। हाँ दूसरा एक बार डाल के देखो। इसलिए बेकिंग पाउडर तो एक बार बेकिंग पाउडर भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ ये एक बार थोड़ा सा डाल के देखो। ये मदर चॉइस वाला डालती हूँ, डीमार्ट का था। आई विल ट्राई दिस वन। हाँ मैंने चाय का पानी भी अच्छे से निचोड़ लिया है, इसलिए उसे मैं प्रेस करके भी काफी पानी निकाल रही हूँ। Is everyone on it? अभी फिलहाल जो फर्स्ट वाला फैब्रिक है उसे हल्दी के पानी में डाल रही हूँ। मेरा ऑलरेडी थोड़ा डाई है तो दिखेगा नहीं। फैब्रिक को पहले गीला करना है या फिर हाँ, डायरेक्टली डालना फैब्रिक है? को पहले गीला करना है, करेक्ट। रनिंग वाटर के नीचे गीला करना है? हाँ रनिंग वाटर के नीचे भी गीला कर सकते हो आप। ओके। टी का कलर कई बार काफी लाइट आता है, डिपेंड ऑन द टी व्हाट यू यूजिंग। मैम हल्का गीला फैब्रिक चलेगा ना, जैसे डैम्प क्लॉथ हो? हाँ हाँ चलेगा। और एक को एक में ही डिप करना है ना? हाँ, आप दो में भी कर सकते हो। दो का मैं बताती हूँ कैसे करना है। समझो दिस इज माय स्क्वायर वाला नहीं, दूसरा कुछ बताती। समझो ये वाला मेरा फैब्रिक है, ठीक है। दिस अगर मुझे इसको 2 कलर में करना है तो पहले मैं हाफ ऐसे डिप करूंगी ऐसे, एंड देन लेटर हाफ एक दूसरे पानी में। ये चाय वाला है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कई बार, मे बी बिकॉज ऑफ बॉइलिंग और टी के ब्रांड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। और अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा एक टिप रेडिश में डिप कर दूँ, so I'll get a bit of red color. So this was dipped in 2 or 3 waters. ये ऑलरेडी यूज्ड फैब्रिक था ना, इसलिए शायद इसमें इतना आएगा नहीं। रेड कलर better I should use this. अगर आपका पानी ठंडा हो गया तो वापस उसे गर्म कर दो। और मैम होने के बाद इसको कैसे रखना है? खोल दो और एक बार एक रनिंग वाटर के नीचे निकाल दो एकदम से। हाँ अगर आपको ऐसे लग रहा है, कई बार क्या होता है ना, किसी की हल्दी थोड़ा टाइम लेती है रंग चढ़ने में। ओके तो फिर आप उसको ऐसे ही रखो और बाद में उसे वॉश करना। ओके, प्लेट पे रख दे? हाँ प्लेट और ट्रे में रख सकते हैं ना? हाँ हाँ ओके 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 मैम। प्लेट में उसको सुखा भी सकते हैं। मेरा जो पानी था वो ठंडा हो गया तो मैं इसे वापस गर्म कर रही हूँ और इससे उसका रेड कलर और अच्छा हो गया गर्म करने से। सी मैंने ना सोडे के पानी को गर्म कर दिया विद द हल्दी वाटर। सी इट हैज टर्न कंप्लीटली रेड।
आप भी ऐसे कर सकते हो। हाँ, जिसका नहीं आ रहा है जस्ट हीट दिस अ बिट। एकदम मस्त रेड कलर आ गया। सी इट्स अ नाइस रेड कलर। मैं ये वाला खोल के बताती हूँ। अगर आपको एकदम डीप रेड चाहिए ना तो सोडे वाले पानी को उबाल लो एक बार। नाइस रेड कलर है, एकदम अच्छा बढ़िया ब्रिक Nice. रेड कलर आया है। जस्ट बॉइल योर सोडे वाला पानी। एक बॉइल ले लो खाली थोड़ा सा बस। तो वन क्वेश्चन हाँ, इंस्टेड ऑफ हम नेचुरल कलर जो है हाँ वो यूज नहीं करने हैं। इनकेस हमें कोई दूसरा कलर यूज करना है, जैसे नील होती है, नीला हाँ। कलर होता है, तो वो कौन से कलर यूज करते हैं उसमें? मतलब जो दूसरे, अगर आपको नेचुरल नहीं करना है या रेड और हल्दी का नहीं चाहिए और दूसरा कलर चाहिए, तो फिर कैसे उसको क्या बोलते हैं? सभी इंडिगो ब्लू वगैरह अगर आप नेचुरल बोलने चाहते हो ना हाँ तो हाँ इंडिगो ब्लू नेचुरल आता है, लेकिन उसका टेक्निक बहुत अलग है। ओके फर्मेंटेड होते हैं, मैंने उसका भी कोर्स किया मेड आल्सो, लेकिन Okay. उसका जो टेक्निक है ना वो थोड़ा सा अलग है। ओके कि उसमें फिर लाइमस्टोन का मतलब चूने का पानी जाता है। इंडिगो जो डाई आता है नेचुरल, वो तीन अलग अलग तरीके का आता है। एक आता है पाउडर फॉर्म में, एक आता है Okay. केक फॉर्म में, एक आता है वेट फॉर्म में। तो सबको प्रोसेस करने का तरीका बहुत अलग है। जो मैंने सीखा है एक राजस्थान के आर्टिस्ट से, वो पाउडर यूज करते हैं और उसके साथ में वो कॉम्बिनेशन करते हैं चूने का, और उसको रखते हैं वो 3-4 घंटे, फिर वो फर्मेंट होता है और फिर उसे वो यूज करते हैं। ओके और अगर आप नेचुरल में चाहते हो कि अगर आपको नेचुरल नहीं करना है, सिंथेटिक हाँ. तो सिंथेटिक डाइज आपको आराम से सम्राट में मिल जाएंगे पूना में। ओके जो ब्लॉक कलर के पहले हमने वर्कशॉप किया था, वो ब्लॉक प्रिंटिंग का, उसके पास आते हैं, वो इसके लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, वो वाले डाइज आप इसके साथ नहीं यूज कर सकते। नहीं यूज कर सकते। के लिए नहीं कर सकते हो। ओके या थैंक यू। मैम चाय पत्ती के पानी में भी सोडा डाला था? नहीं नहीं, नहीं ना, ओके ओके। बट आई वुड सजेस्ट सोडे के पानी को उबालो, उसका नाइस रेड कलर। मैम ये सारे खोल दे डिप कर करके। हाँ ओके मैम ये खोलने के बाद इसको बस ऐसे ही ड्राई करना है ना? हाँ तो मैम ये ड्राई होने के बाद यू हैव टू वॉश इट नॉर्मली? यस, वॉश इट नॉर्मली। और इसे जब आप वॉश भी करते हो ना तो एकदम समझो आपने इससे कुछ टेबल क्लॉथ बना लिया या आपने अपना कोई शर्ट इससे डाई किया है, ठीक है, इसे तुरंत आप कोई वॉशिंग पाउडर में मत डालो। उसको आपको हमेशा कोई पीएच न्यूट्रल फैब्रिक सॉफ्टनर से ही वॉश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यदि इसे सीधा उठा के अभी सर्फ एक्सेल के पाउडर में धो दूंगी ना तो ये तुरंत फेड हो जाएगा। तो ये मैम फर्स्ट वॉश के लिए, ओनली फॉर द फर्स्ट वॉश? ओनली फॉर द फर्स्ट वॉश। अभी देखो मैं इसको पानी में रिंस करके लूँ। This is rinsed in water. I just rinsed this. तो अब देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, कलर थोड़ा मिक्स हुआ। फॉर द फर्स्ट वॉश ऑल्सो हमेशा के वॉश के लिए आपको माइल्ड डिटर्जेंट यूज करना है, बहुत ज्यादा डिटर्जेंट नहीं यूज करना है इसके।
तो मैम पहले तो पूरा ड्राई कर देना है ना, उसके बाद ही वॉश करना है? हाँ हाँ, राइट। ये जो हमने फर्स्ट वाला किया था, आई एम ओपनिंग दैट आल्सो। मेरा ऑलरेडी वो हल्दी के कलर में था, बट मैंने अभी उसे ना सोडे के पानी में डाला। आप इससे ये आता है ना झंडू का फूल, मैरी गोल्ड वाला, आप उससे भी डाई बना सकते हो। आपको क्या करना है, वो लीव्स को पानी में उबालना है एक 10-15 मिनट्स, और उसे ढक के रख देना है, और आगे 10-15 मिनट के लिए। फिर वो ना अपना येलोइश कलर पानी में छोड़ देगा। एंड इफ इट्स ऑरेंज कलर झंडू का फूल, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर आएगा। So I'm just opening this. ये जो हमने फर्स्ट वाला किया था ना, वो कुछ ऐसा है। Everyone done? It's looking really nice. किस किसका हो गया स्क्रीन पे कुछ बताओ। Everyone has just mute their screens. करके बोलना done. Can you guide us with the colors if we have to use it with the colors, like the ones which we get it in Raivar Pet in that color shop, or Samrat? Those colors, we have to put salt in it. Yes. And ma'am, what other kind of colors we can use apart from that shop, or is there any other? Then other option is this, the natural dye one. A lot of people do it with acrylic colors also. Like acrylic color से क्या होगा ना कि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत स्टिफ हो जाएगा। Okay, ma'am. So we don't want that ना, बहुत stiff हो जाएगा। Give me 5 minutes. It's coming out very well, although. Ma'am, this is Aparna. This is the first one that has come out. First one, The first one that we tied. very nice. The red and the yellow color is so beautiful. आपने बहुत अच्छे से बांधा था, इसके सर्कल्स में बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। Thank you. केयरफुल ना, कभी कभी फैब्रिक भी फट जाता है। Like this. ना ये एज वाला तो आपको खोलना ही पड़ेगा, ये ऐसे खुलेगा नहीं बीच में से। This is that triangle one. It has some but बहुत spiral one. I used the dye that I had. lovely है, ठीक है। एक हाफ बकेट पानी में आपको एक बड़ा चम्मच एलम डालना है। व्हाट इज एलम? इट्स कॉल्ड तुरटी, और यू कैन आल्सो कॉल दिस एज फिटकरी। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में अच्छा खासा 10 रुपीज का आपको इतना सारा ऐसे क्रिस्टल देता है। बड़ा क्रिस्टल है, आइडियली ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स में आता है, और आइदर पाउडर फॉर्म। इफ यू बाय दिस फ्रॉम एन आयुर्वेदिक स्टोर तो आपको वो पाउडर देंगे, और अगर आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर से लेते हो तो आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स देते हैं। मेरा ना मेल्ट होके वो एक साथ हो गए, ठीक है। आपको वो 1 चम्मच एटलीस्ट वो क्रिस्टल्स देने हैं। हाफ बकेट पानी में मिक्स करना,
ठीक है. फर्स्ट यू विल डिप योर टर्मरिक वाला फैब्रिक इन इट. ठीक है, जो आपने सिंगल सिंगल कलर किया है पहले आपको वो डालना है. उसमें आपको वो 5 मिनट तक रखना. रिमूव इट एंड देन ड्राई इट इन द शेड. देन गो टुवर्ड्स द डार्कर कलर. ठीक है, एलम के साथ आप ऐसे कलर फिक्स कर सकते हो, बट दैट स्टिल डज नॉट गारंटी. लेकिन आपका काफी हद तक कलर फेडिंग रुक जाए.